All right, students, a very important topic coming here for the reasons that organic chemistry has got almost one complete book, and the important thing is how actually reaction take place. Unless we know, students, the mechanism of the reactions, we will find it hard to understand the chemistry and will not be able to answer large number of questions. The question before us is general organic chemistry. That there are certain basic concepts which we must know if we want to do the reactions of organic compound, students. As you see that in organic chemistry, what we are going to do, you are studying the preparation of the organic compounds, physical properties, chemical properties, but how the reaction takes place, student. Why should a reaction take place? And it's a carbon compounds and their derivatives of hydrocarbons. So we know that in the molecule which is organic compound, student, organic molecule which is their substrate, this has to be attacked. There is an attacking reagent. There is an attacking reagent which will attack this. And what will be the result of that, students? There will be intermediates which will be formed. And what type of intermediates will be formed? What type of intermediates are going to be formed, students, in the organic reactions? And once the intermediates are formed, the stability of the intermediates is important, students. How stable these intermediates are. So we have to study substrate, the organic molecule, students, is attacked by a reagent, and then what is the result of that, students? This will form an intermediate, and intermediate will break down to form the products and some byproducts. Now what I am trying to tell you, we are going to study the how the reactions take place and try to understand what type of intermediates will be formed. So this will provide us an understanding of the mechanism of the reactions. Once we know the mechanism, we will like the reactions, we will love the reaction, we will know, students, how the reaction is taking place. Rather than cramming the reaction, which will become very hard and difficult, it will be possible to understand the organic reaction and the mechanism of the organic reaction. So it's an attempt by me to decode the reactions which are taking place. So what I said to you, students, that you are having an organic molecule. What do you have? Organic Organic molecule. molecule, student. ठीक है? Now this is known as substrate in the organic chemistry, students. And there will be coming a attacking reagent, students, attacking reagent. And what will happen, this will react to form some intermediate, students, intermediate, and I'm showing it by this type of brackets. What it means, when I show like this in the chemistry, these are short lived and are very reactive Unstable. and are unstable species, students. Something which is unstable, will it exist? No. No, sir. It will immediately try to react and form some product, student, and it will not appear in the final products. So what is the result of this, student? Product and byproducts. Did you see that this in organic reaction or not? Yes or no? Yes, sir. Acha, okay. You are interacting with me. You are alive. You are intelligent students. You are interacting with me all the time. It's a two-way process. We have to understand. We have to understand. Mutually, we are helping each other.
You help me, I help you. So maybe sometimes you know more than me. More than me, I'm saying. Sometimes you got have better memory than me because you are studying more than me. You have to appear for the exam. So what we are trying to say, attacking reagent, organic molecule, substrate, intermediate. We are going to see what is this intermediate. That is our story. Because you see that intermediates will be of the order of stability. Students, order of stability of these intermediates is important. More stable intermediates means more it will be formed, and therefore they will lead into major products. Major, organic chemistry, you have seen major products and Minor products. minor products. That means more than one intermediate may be formed. Yes, it is being formed. And one which is more stable intermediate student will produce major product. More stable, I'm saying. Therefore, we like to study the stability of the intermediate student, and a sequence. The reaction is definitely, that means taking place in a sequence of steps. So the sequence of steps, the steps I'm saying, not one, maybe more than one. You have seen in chemical kinetics also, students. One, two, three, slow redetermining steps and fast reaction, student. So there are more than one step which are taking place in the reactions. And basically, what is happening, student? Bond cleavage. That means there is a breaking of certain bonds, student. Yes or no? Yes, sir. You have a reactant, student. How it will react? These are There are in the carbon compounds. You have got covalent bonds. You have got covalent bonds, student. Every bond has an energy. Energy. What do you mean by bond? Bond means there is some energy between the atoms. You want to break it, you have to supply that energy. So the bond will break. After the bond is broken, what happens? Products are formed means how? There will be new bonds which will be formed. Formed. Yes, sir. So there is a bond cleavage, students, and bond formation. Formation. This process will take place, students. And intermediate will involve something like that, bond breaking and bond formation. Bond breaking and bond formation. It will go to a higher energy state, students, and then it will fall down to the products and byproducts. And this sequence of steps is what we call as, students, the mechanism of the reaction. What we call this as mechanism of the reaction. If I understand the sequence of steps, I understand the reaction, I can control the reaction and produce the desired products. If a catalyst is there, temperature is there, pressure is there, so many things will be there in organic chemistry. So we will like to study this type of situation. Whatever functional groups we are studying, in every reaction, there is a sequence of steps, student, and that is the key. If I know them, I am very comfortable with the organic chemistry. In the exam, they will say write the products of this reaction. How will you write the product unless you know what type of intermediates are involved, what type of reagents are attacking, what type of charges are there, students? So all this is a part of the organic chemistry which we should know. We will tell you more about these also, what type of bond polarities will be there, what type of Levy structures are there, how many bonds can an element form. All this will become this important part of this, which we will also going to tell you in some other lecture, because these are going to be used for studying the organic reactions. There is a energy, and important point is there is a movement of electron, students. Electron movements. Electron movements. See,
you have an atom in every element. You have an atom. Carbon has an atom, hydrogen has an atom, oxygen has an atom, every nitrogen, sulfur, whatever you are talking in organic chemistry. The nucleus is not participating in chemical reactions. Yes or no? Yes, sir. The nuclear energies are very high order, students. The Yes, forces sir. between the nucleons are of very high order. Then what is going on? These are the electrons which are moving. Electrons Moving. are moving, students, in the reactions which are taking place. Which electrons are moving? All this we will going to see in this chapter. How the movement of electron takes place, what can happen or not. Okay, this is a we are going to see very interesting, very interesting, amazing chapter. I am telling you. If you people understand this, you will know what the chemistry of carbon compounds is all about. That means you are telling to me there will be a bond breaking in a organic reaction, yes or no? Yes, sir. What do you call breaking as a fission of a covalent bond, students? There's a Yes, sir. covalent bond between the carbon and other Yes, compounds, sir. elements. How the bonds can break? If I represent a line, student, that means it is a bond, and how many electrons are there in this bond? Two electrons. Two electrons are there. So, how will the fission take place? How will the fission take place? It will depend on the reaction conditions also, students. But we have defined here two types of cleavage: heterolytic and homolytic. Homolytic. And chemistry, you told me repeatedly, sir, when I say homo, means what? Homo means same. Same, na? So, homolytic fission means that if I am doing homolytic fission, the cleavage of covalent bond will take place. There are two atoms. There are two atoms, students. You have two atoms. I am saying there are two atoms, student. Two atoms. There are two electrons. There are two electrons. So if a homolytic cleavage take place, what will happen? That out of the two electron, each will take one electron. Each will take the one electron. Then how do I represent this? Got it? Yes, sir. So I have shown half arrow. This is called a fish hook arrow. Fish hook arrow. Fish hook arrow is called half arrow. This half will mean one electron is taken by this, one electron is taken by this. And what you are getting, student, what do you call this as? These are called free radicals in chemistry. Yes or no? Yes, sir. Free radicals are formed. But how will this fission take place, students? You have to supply some energy, and Yes, sir. usually you will see that this is a, you have seen the reactions like UV. What it means? Or H mu. H mu. Some other Some than energy is this applied. UV, I am saying H mu. H mu is a symbol of light energy, students. Light energy. Yes, sir. Or you heat it, or you heat it. I'm not saying you because there could be this type of light energy, any type of light energy, depends. Energy sufficient to break this bond. These electrons are unpaired, students. ठीक है? Yes, sir. Odd electrons, and these are highly unstable and very reactive species. Very reactive species. So here what we have tried to show, students, that in this case, what we find, for example, I have shown what is this, students? This is my alkyl halide, Yes, sir. and if you throw heat or light on it, what is happening? Homolytic fission. Each is getting one electron, which we are calling as radical, student. Radical, student. Do you remember any organic reaction involving free radical, students? Can you give me an example of this?
Can you give me an example of a reaction which involves free radical, students? Any example? Yes, sir. Tell me, you already know. Uh, We are working on the basics of organic chemistry now. This very important topics are coming. Let me tell you in this. This will make all the organic chemistry absolutely simple and clear for us. Sir, it is when an alkane and an halogen reacts. What do you call as halogenation of alkanes? Yes, sir. Halogenation of It alkanes. takes place in the presence of light. H. Yes, sir. You know, this is called a free radical mechanism. You heard about that? You have used it. Free radical mechanism. And students, how many steps were there in that reaction? Free radical mechanism. How many steps the reaction took place? You have any idea? Free radical mechanism reaction took place in how many steps? Students, you are aware of initiation? 3 steps. Okay. Second, First was initiation, propagation, and termination. okay, very good, very good. Thank you very much for helping me. I was forgetting. You see that the more you practice, the more you revise, the more you will learn. That is the basic of organic chemistry. And then things become easier for us in the exam. Very easy. Mechanisms are asked in the paper, it becomes easy for us. So what was happening, students? You are saying, sir, there is a Cl. What is happening? Now you can represent it. You are forming radicals. So unless this reaction step takes place, will the reaction proceed? No, sir. So that is why you call it initiation. Light energy is required. And after this radical is going to be very stable, students. So what it will do? If you have this, keep on writing, keep on writing. You will always keep on writing. That is the Yes, point, sir. students. The more you write, the more you will learn. Is the way to learn organic chemistry, students. Now what will happen? You have got a Cl dot. This is in great need of electron. Hungry for electrons. So what it will do? It will try to get it from somewhere. And hydrogen and carbon, you see, hydrogen is also what it will do. Rather than sitting with it, it will prefer to go with it. And it will take one electron from here. And the result of this is then this comes with this. See the story? Even this hydrogen is selfish here. It will immediately find a better friend. So it will go with that, and this will be left with one electron, and you will get HCl. Got it? Yes, sir. And this is again a radical now. Again hungry for an electron. What it does? These are propagating steps, student, and what it does? There is so much of chlorine present in the reaction, students. So what it can do? It can again React. this can again happen now. This carbon will take this chlorine and again generates this. That is why it is called propagation, because what is required is generated within the reaction. See the story? So radicals are very important in organic chemistry, and large number of reactions proceed through radical mechanism. Yes or no? Yes, sir. So what type of fission is this? Homolytic fission. Homolytic fission. We will try to see what conditions are required for that, because there is no charge here. Is there any charge on them? No, sir. No charge is there. So we will see what type of solvents will favor such a reaction. Termination means that they have to end somewhere. So what type of terminations are taking place, students? There will be all types of terminations, CH3 and Cl, because you have a large number of molecules, very large number of molecules. So reaction is full of everything.
and there could be more terminations which could take place. Even CH3 and CH3 can terminate. So some products like this will also be formed. See, right or wrong? Yes, sir. So this is how we build up the reaction. Can I remember? If I remember this Rattebaji, what I will do in the exam, students? Got my point? You get to understand the mechanism of the reaction, how the reaction proceeds, student. That's our objective. And there will be coming so many things in this. Then organic chemistry, you will love it. And that's the story. You should like the subject you are studying and you should understand it. Our purpose is to decode the chemistry completely for students. We are not going to interested in just telling you, okay, do it or finish the course. Course is already with you. And NCRT book is with you. So what is the issue? You already know about it. So how to be able to understand and see the steps of the reaction. Okay, this is the first story, students, where you have generated a free radicals. And you can see that here, large number of such reactions will be there in the organic chemistry, where we will have, and the free radical reactions are extremely fast, students. Why they are very fast? Why they Because are the very fast? free radicals formed are very unstable, so they react very fast. Something more than that you see? Sir, Everything is they, reactive. Carbocation is also, positive ion are also very reactive. Carbon plus sir, negative. but they have an unpaired electron, so they have the need for one more electron. That is not the answer for the question which I asked. So that is why I asked you. Why the free radical reactions are extremely fast, students? I give you a space to think, student. Think, सोचो. जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, सोचना है, सोच के ही तो होगा. अगर ने सोचा नहीं तो फिर क्वेश्चन क्या किया हमने? जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में होंगे उनमें सोचना पड़ेगा, स्टूडेंट, दिमाग लगाना पड़ेगा. जल्दबाजी में कुछ नहीं होना. अरे चेन प्रोपेगेटिंग है. Once it starts, the chain builds up. Chain propagation steps take Okay. place within that action. You can see that. This initiation is the only thing. That's all. After that, it works by itself. And chain propagating steps, immediately they will take place, and the reaction will keep on repeating, and the result of this will be, it will be a chain reaction, student. Chain reaction बहुत fast होती है. Chain बन जाती है. देख रहे हैं 3 स्टेप बताए तो Yes, sir. प्रोपेगेशन Yes, स्टेप हो sir. रहा है. बार बार इसको बनाने की प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपने आप ही बनने जा रहा है रिएक्शन में. कहां बन रहा है? चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स में. रिएक्टिव तो सारे ये इंटरमीडिएट्स हैं जो भी बनेंगे. जब मैंने इंटरमीडिएट कह दिया तो उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है. क्या क्या वो प्रोडक्ट में आइसोलेट हो रहे हैं क्या? No, sir. फिर वो फास्ट ही है, सब अनस्टेबल है. Okay. अब समझ में आ गई स्टोरी Yes, क्या sir. हुआ? तो हम कैसे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड थिंग्स, स्टूडेंट? बाय थिंकिंग ओनली. और क्या करना हमने? सोचना है. मैंने सोचना छोड़ दिया, मैं भी खत्म हूँ. और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? जब वो सोच नहीं रहे, रट्टेबाजी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे एग्जाम में? कुछ भी नहीं. हमारा काम क्या है? मेरा काम क्या है? आई एम ए कोच. एक्चुअली आई एम ए कोच. आई एम, व्हाट डू यू मीन बाय कोच? आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक. स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है ये सारा कुछ? If you're playing a game, you have to apply your mind. It's not that you start hitting the ball anywhere anytime. You've got to see, student, mind में thinking process बहुत strong होती है, students. वो तभी students जो हैं, they can go deeper into the subject and understand and answer the questions. समझ में आ गई story? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. दिमाग पे हथौड़े मारने हैं, स्टूडेंट को थोड़ा तेज करना है. ये जो माइंड होता है ना, ये इट वांट्स टू लिव इन ए कंफर्ट जोन में रहता है वो. तो जब तक उसको हार्ड चीजें नहीं मिलती तो वो सिंपल चीजों में बहुत खुश रहता है. समझे? Yes, sir. तो उसको जब हार्ड चीजें मिलती हैं तो उसे थोड़ी डिफिकल्टी होती है करने में, लेकिन बाद में वो फिर उसको कैच कर लेता है. हर चीज में यही होता है, स्टूडेंट. और जो टॉप पर जा रहे हैं वो हार्ड चीजों को कैच कर लेते हैं. माइंड सबका सेम होता है, वो ग्रो कर लेते हैं, ग्रो हो जाता है. चाहे कोई प्लेयर भी होता है तो वो हार्ड चीजों में प्रैक्टिस कर लेता है. माइंड उसका, फिर वो माइंड अपने आप ही काम करता है. ये दे डोंट डू एनीथिंग. दैट्स द स्टोरी. वो अपने आप एक्शन होती है. एक्शन कैसे होती है, स्टूडेंट? माइंड जो तुम्हें देता है रिस्पॉन्स, तुम एक्ट करते हो.
तो ये हमें हर चीज पे ज्यादा टाइम लगाना है, ज्यादा टाइम लगाना है स्टूडेंट। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। जल्दबाजी में मैं करता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अब द मोर टाइम आई स्पेंड ऑन एनीथिंग द मोर आई लर्न। यस और नो? Yes, sir. ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ तुम्हें। जो टॉप के लोग हैं, साइंटिस्ट, क्या करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, तो उन्हें समझ आ जाती है, चीज की समझ आ जाती है स्टूडेंट। यही तुम्हें बता रहा हूँ। चाहे तुम साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हार्डली मैटर्स टू मी। बहुत देयर विल बी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ये थोड़ी कि एक ही चीज को लेके स्टूडेंट जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हर चीज बहुत आगे तक जा चुकी है। तो अब यहाँ तक हमें समझ आ गया स्टोरी। अच्छा ठीक है, मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, मैं मिटा देता हूँ। ओके, जहाँ पे मैं गलत होऊंगा मेरी हेल्प कर देना। मैं तुम मेरे से भी ज्यादा बेटर हो कई चीजों में, समझ गए? Yes, sir. मैं आई कुड डू मिस्टेक स्टूडेंट, पे अटेंशन। तो जहाँ मेरी गलती होगी मुझे बता देना। तो इसलिए कह रहा हूँ, पे अटेंशन टू द थिंग्स। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विदाउट अटेंशन, कुछ भी नहीं होने वाला। समझ ही नहीं आएगा क्या है। मेरे को भी नहीं समझ आता था, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता। चलो अभी मैं लेट मी कम अप टू दिस लेवल। ओके, अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ। अब ये फिशन तो समझ में आ गया कि रेडिकल्स बन गए होमोलिटिक फिशन में। अब एक और जो पॉसिबल फिशन है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे हमने दो लिखे थे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब बताओ कि हेटेरो का मीनिंग ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या होगा। Different. अब यू हैव, देखो दो एटम्स हैं आपके पास, दो इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों ये ले गया तो क्या बनेगा फिर? x प्लस और y माइनस। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। जैसे कि स्टूडेंट तुमने मुझे बताया सर कि ये लो, आई विल टेक दिस कंपाउंड सपोजिंग स्टूडेंट्स, अब both the electrons are taken by it, so what is the result of this student? What do you call this? CH3. कार्बन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हो? Carbocation. कार्बोकेटायन। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट इन द रिएक्शन। In fact, large number of reaction will be proceeding through कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो कार्बन, कार्बन देखो, अब हम तुम्हें बताने ही वाले हैं, फॉर्मल चार्ज एक नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। देखो कार्बन ये है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ प्लस आ गया, ठीक है। Yes, sir. अब बताओ कि ये फॉर्मल चार्ज, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। इसको निकालने का भी तरीका है, वो हम बताएंगे तुम्हें। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला पता है तुम्हें कैसे निकालते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होते हैं स्टूडेंट, फॉर्मल चार्ज होते हैं। फिर ये पॉजिटिव साइड बन गई ना, पॉजिटिव साइड बन गई, अटैकिंग रिएजेंट फिर आएगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के ऊपर लेस इंटरेस्ट है अटैक होने का, डिफिकल्ट है, बट चार्जेस आर क्रिएटेड ना, देन यू नो देयर इज वेरी गुड चांस ऑफ अटैक, बिकॉज अपोजिट चार्जेस विल मूव। वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया ये वाला, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज जो था अनस्टेबल हो गया। अब क्या है फॉर्मल चार्ज, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। सर किसमें है? ये CH3 में। कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कार्बन स्टूडेंट्स? Carbon is 4. सर 4. 4, ठीक है। अब बताओ कि इसमें इज देयर एनी लोन पेयर? No, sir. 0। हाउ मेनी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? Sir bond pair electrons 4. 4 bond नहीं, एक तो चला गया ना। सर 3 bond pairs are Three. there. 1 2 3 बॉन्ड पेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6. 6 हुए। जल्दबाजी नहीं सोचना है, सोचना है, यही तो क्वेश्चन ही आ गया फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो,
अब कितना आ रहा है ये? 3. 4 minus 0 minus 3 1. +1, तो वही प्लस चार्ज मैंने यहाँ दिखाया है। बात समझ में आई? Yes sir. कैसे आया? ये फार्मल चार्ज की कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ भी मैंने यूज कर दिया तुम्हें। भाई समझना है, चीजों को समझना है, ऐसे प्लस माइनस थोड़ी लगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं सर कोई प्लस लगाते हो कोई माइनस लगाते हो। समझ नहीं आई स्टोरी, तो समझ तो तब आएगी जब तुम्हें कोई एक्सप्लेन करेगा। फॉर्मल चार्ज तुमने सीखा नहीं, तुम सीधे कहते हो जी। अब वो सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी जहां भी यूज करूंगा मैं फॉर्मल चार्ज। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में भी करूंगा, हर जगह करूंगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा कैसे निकालते हैं सारे। तो यहाँ पर इसलिए हमने प्लस लगाया हुआ स्टूडेंट की ये कार्बोकेटायन बन गया, इसका फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर प्लस है। समझ आई? Yes sir. और डाउट है तो फिर निकाल के देख लेंगे। Okay. ओके, ये भी तुमने नोट कर लिया? Yes sir. अच्छा ठीक है। तो कार्बोकेटायन बन गए स्टूडेंट्स। अब ये एक प्लस और एक माइनस बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आयनिक रिएक्शन है। क्या है? Ionic reaction. मतलब पोलर है, पोलर रिएक्शन है, क्योंकि आपने चार्जेस क्रिएट कर दिए, इसमें चार्जेस क्रिएट कर दिए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो कार्बोकेटायन है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये तो पता लग गया कि इंटरमीडिएट जो बना है, जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आयंस बन रहे हैं और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब किसी चीज व्हेन एनी एटम हैज गॉट ए चार्ज ना, देन इट इज गोइंग टू रिएक्ट। व्हेन एन एटम हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू रिएक्ट। वो रेडिकल था और यहाँ पे Okay. प्लस आ गया तो भी ये रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। React करेगा. तो इसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होने वाली है, शॉर्ट होने वाली है। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोलिटिक फिशन हो सकता है कि ये जो एटम है स्टूडेंट, ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन इसी को दे दे कार्बन को, तो फिर क्या बनेगा? क्या बन गया? कार्बन के ऊपर Carbon. नेगेटिव चार्ज आ गया। व्हाट डू यू कॉल Carbon दिस? ion. इसे क्या बोलते हैं? कार्बन। Carbon ion. अच्छा, तो आपके पास कार्बन आयन बन गया स्टूडेंट, कार्बन कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज बन गया स्टूडेंट। और दूसरा ऐसा कौन सा एटम होगा जो ऐसे करेगा? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी मैं तुम्हें बताऊंगा, वो भी एक लेक्चर और करूंगा, उसमें पता लगेगा कि बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर होते हैं स्टूडेंट्स। जो व्हाटएवर वी स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े थे, सारा ऑर्गेनिक में यूज हो जाएगा, चिंता मत करो। अब वो पोलर होते हैं सर, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होंगे, या कि फिर और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं? बताओ, तुम ही बता दो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सीख लो सारी। कौन से ऐसे एटम होंगे स्टूडेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे? सर मेटल एटम्स भी होते हैं। हाँ मेटल होते ही है, मेटल ही होते हैं, और कौन होते हैं? तो तुम केमिस्ट्री में देखोगे कि जैसे मैग्नीशियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम देगा, जिंक देगा, इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो हम रिएक्शन पढ़ोगे, वर्ड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था तुमने? यस सर। तो उसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास क्या चार्ज था? मैग्नीशियम के पास में +2। प्लस चार्ज था, मतलब यस सर। तो वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, किसको? कौन ले गया था? कौन ले गया था स्टूडेंट्स? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट किया था कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन्स की खास रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस और नो? यस सर। तो फिर एक हथौड़ा मारो दिमाग पे और बताओ मुझे क्या कह रहा हूं मैं। कौन, क्या चार्ज था आर के ऊपर? प्लस चार्ज था सर प्लस आपके चार्ज। ऊपर। दोबारा सोच लो, दोबारा सोच लो। नहीं सर, प्लस चार्ज नहीं था, प्लस चार्ज नहीं था।
ये होगा RMgX को तुमने लिखा था स्टूडेंट, और कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा था स्टूडेंट, तो व्हाट वाज द चार्ज ऑन R? सर R के ऊपर माइनस चार्ज था। कार्बन आयन ही तो था, तभी तो वो रिएक्ट किया था, नहीं तो क्यों रिएक्ट? यस सर। तो दैट वाज द रिएक्शन इन विच कार्बन वाज एक्टिंग एज एन आयन स्टूडेंट्स। अब बात समझ में आनी शुरू हुई है, कुछ स्टोरी क्या बता रहा हूँ कि रिएक्शंस में क्या हो रहा। देखो, हमने ये कहा कि RMgBr आपने लिखा था, हमने कहा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव का मतलब क्या है? R माइनस जो है ये क्या न्यूक्लियोफाइल बन गया था, ये कार्बन आयन था और ये इसने अटैक किया था स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव था, दिस वाज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर अटैक कर रहा था कार्बन पर। बात समझ में आई? यस सर। तो ये कार्बन आयन बना था। तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, Zn वाले, सोडियम वाले, मैग्नीशियम वाले, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, कार्बन से भी कम होती है स्टूडेंट। तो ये देख, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा इससे, तो फिर ये इस ऐसी रिएक्शंस होंगी जो आपने देखी थी। अब समझ में आ रही हो क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। वहां पे क्या बना था? इंटरमीडिएट कार्बन आयन बन जाते हैं स्टूडेंट, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप Yes, देखो, ये है कार्बन, ये है कार्बन के 3 बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया स्टूडेंट्स। लोन पेयर, अब बताओ कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज ऑन दिस कार्बन स्टूडेंट? सर ये होगा ये बताओ, 4 वैलेंस - इलेक्ट्रॉन कार्बन में जल्दी बताओ कितने? 3। हाउ मेनी सर वैलेंस? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। 4। लोन पेयर सर 1 लोन पेयर है। 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। यस सर। माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? सर बॉन्ड पेयर 3 है, तो इसमें 6 हो गए इलेक्ट्रॉन 6/2। तो इसकी बाय वैल्यू 2। कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? निकालो। सर -2 होगा फॉर्मल चार्ज। -2 आ रही है? कैलकुलेट करके तो देख लो, बिना कैलकुलेट करके क्यों बता रहे हो आंसर? नहीं सर, 6/2 3 होगा। 4 4 सर -1। फिर मैंने क्या कहा था? जल्दी में जल्दी आंसर नहीं करेगी, आराम से टाइम लेके करेगी। जितने भी ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, whenever they give an answer in a hurry, they are wrong, and when they take time, the answer comes right. What I told you, in every class I told you, exam में भी you will not give any answer in a hurry. बोला नहीं तेरे को? कितनी बार बोला? समझ में आई स्टोरी? यस सर। तो ये फॉर्मल चार्ज ही होता है जो हम दिखाते हैं। कार्बन आयन का फॉर्मल चार्ज स्टूडेंट -1 दिखाया गया है बुक्स में, तो अब आप खुद ही बना सकते हो कि कितना आएगा। तो ये कार्बन आयन बन गया, देयरफॉर you have a carbon carrying a negative charge students, is a reactive intermediate, it's a reactive intermediate, is a unstable intermediate। ये भी आयनिक रिएक्शन है, आयन्स बन गए। तो मैंने कितने टाइप के फिशन बताए? सर 2, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। और कितने टाइप के इंटरमीडिएट्स बताए स्टूडेंट्स? सर इंटरमीडिएट एक तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, और और एक होता है आयोनिक इंटरमीडिएट। आयनिक 2 को नाम बताओगे? नहीं, आयनिक तो है सर, एक होता है कार्बो एनायन और एक होता है कार्बोकेटायन। तो 3 इंटरमीडिएट बन रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बोलो, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यस सर। तो इनको हमें, वी शुड बी एबल टू नो अबाउट देम। क्या नो करना चाहते हैं आप इनके बारे में? जल्दी बताओ। सर इनका रिएक्शन कैसे फर्दर होगा, कैसे मैकेनिज्म में ये पार्टिसिपेट करेंगे। और कुछ? एक और, आई एम टोल्ड यू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। क्या स्टडी करते हैं हम? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर इनकी स्टेबिलिटी, हाँ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, विच इज मोर स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल, ये सारी स्टोरी तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अब कार्बोकेटायन बन गए, लेकिन सारे कार्बोकेटायन सेम थोड़ी हैं।
कोई यूनिवर्सल कार्बोकेटायन थोड़ी बना है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी है जो बस हो गया एक बार, किसी में भी है। अरे इसके साथ बहुत कुछ डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो फिर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगा। जहां भी कभी H लगा है, कभी R लगा है, कभी OH लगा है, कभी कुछ बहुत कुछ लगा हुआ है, तो कार्बोकेटायन तो बनते जाएंगे, लेकिन डिफरेंट कार्बोकेटायंस होंगे। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी स्टूडेंट, दैट इज द क्वेश्चन नाउ। बोलो सही बोला मैंने, गलत बोला? बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, ये मैं आगे चल रहा हूँ। ये तो हो गया तुम्हारा, Yes, sir. नोट करना है तो जो भी कर लो बस। सर कर लिया नोट सारा। ओके, आप देखो यहाँ पर हमारी स्टोरी ये आ गई कि देखो अब इंटरमीडिएट से कार्बोकेटायन क्या चीज है स्टूडेंट, वैसे है क्या? कार्बन क्या था तुम्हारा 6, तुमने कहा सर 1s2 2s2 2p2, 2p2। लेकिन ये तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। तो तुमने कहा सर क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट लिखो। एक्साइटेड स्टेट कैसे बनाते हो तुम लोग, बोलो क्या बनाया तुमने? 2s 2p, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन ईच, बोलो। ये एक्साइटेड स्टेट है, यस और नो? Yes, sir. कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी, मेरे साथ इंटरेक्ट करो। इफ आई एम रॉन्ग यू विल टेल मी। समझ गए? Yes, sir. यू आर इक्वली ए टीचर विद मी, आई एम नॉट ए टीचर, यू आर आल्सो माय टीचर। एक्साइटेड स्टेट, यस और नो, सही है गलत है? Yes, sir. अब देखो इस कार्बोकेटायन में क्या हुआ है, क्या हुआ है कार्बोकेटायन में? जब ये बना, मान लो ये था, प्लस लगा दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा गया? एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है क्या बढ़ा है, जल्दी बताओ? सर कम हुआ है। कम हुआ है, कौन सा वाला? इसको निकाल देते हैं, चलो आउट। Yes, sir. तो अब क्या बच गया फिर तेरे पास? 2s और 2p में 2। 2p, कितना बच गया? यहाँ 1 पे 1 2 और 3। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बता, 1 मिनट का वक्त होता बस। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है कार्बन की स्टूडेंट? सर sp3। कहां पर है तीसरा? कितने बॉन्ड बना रहा है ये, कितने एटम के साथ जुड़ा है? हाउ मेनी एटम्स इट्स कंबाइंड स्टूडेंट्स? 3। तो 3। फिर कितना, कौन सी आएगी? 1s और 2p मिलके क्या बनते हैं, बोलो? एनी डाउट? ओके सर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ कार्बोकेटायन में? sp2। और उससे पहले CH4 था, उसका क्या था? sp3। तो sp3 से sp2 में आ गए हो, लेकिन क्या देख रहे हो कि ये एक वेकेंट पड़ा है। क्या है? वेकेंट 2p ऑर्बिटल, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब जो व्हाट इज द शेप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्टूडेंट, क्या शेप होती है? ये ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं, लेकिन एक वेकेंट पड़ा p, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, देखो 3 डायमेंशनल पिक्चर, इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। किसकी दिखा रहे हैं? कार्बोकेटायन की। ये क्या, ये बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2s, बोलो यस और नो? यस सर। कितने हैं sp2s बॉन्ड्स, जल्दी बताओ? अरे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में। सर 3 बॉन्ड्स sp2। 3 sp2s? यस सर। सिर्फ sp2 नहीं है, ये हाइड्रोजन का s है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1, समझे? ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 हाइड्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, तो sp2, ये दिस इज sp2s, दिस इज sp2s, दिस इज sp2s। समझ में आई स्टोरी? यस सर। अब उसके ऊपर एक पड़ा हुआ p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू, बिकॉज दीस 3 p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाला एम्प्टी है, दिख रहा है? क्या है? एम्प्टी। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, खाली है, कोई भी आएगा इलेक्ट्रॉन देने वाला तो ये ले लेगा, यस और नो? यस सर। समझ में आ रही स्टोरी? अब ये मैंने जो दिखाया है 3 डायमेंशनल पिक्चर, एक ये डार्क वेज का मतलब बताओ जल्दी से क्या है?
So dark waves मतलब coming towards the observer, और ये डैश्ड, going away from the observer. ठीक है। इसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में काम आते हैं जब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएंगे। अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और चौथा डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा फिर, दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। Yes sir. पढ़ा था कायरल, Yes sir. तो फिर वो पता लग जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी, इसलिए हमने 3 डायमेंशनल पिक्चर दी है स्टूडेंट्स। तो कार्बोकेटायन पता लग गया, ये भी पता लगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय Heterolytic fission. फिशन। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता लग गई इसकी, sp2। sp2. वन वेकेंट पड़ा है कौन सा, p ऑर्बिटल, ये दिखाया मैंने, ये दिखा दिया यहाँ पर, ये वेकेंट है। और अब ये आयंस हैं, प्लस माइनस आयंस हैं, तो आयंस कौन से सॉल्वेंट में बेटर रहेंगे, जल्दी बताओ। सॉल्वेंट यूज करते हो नहीं, Sir, polar solvent. पोलर सॉल्वेंट्स, तो नाम बताओ पोलर सॉल्वेंट का। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द पोलर सॉल्वेंट स्टूडेंट्स। Sir, polar solvents का water होता है, वाटर तो है ही है जो मेनली यूज, फिर ethanol भी होता है, ठीक है। और जो Acetic नॉन acid. पोलर भी पता है तुम्हें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर बीइंग यूज्ड स्टूडेंट्स। बेंजीन होता है, Benzene. टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है, क्लोरोफॉर्म होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह से वो जो होते हैं स्टूडेंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी समझ में आ गई। Yes sir. अब एक क्वेश्चन हमारे पास मेन ये है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटायन, किस पे जा रहे हैं हम, स्टेबिलिटी के ऊपर। हमें समझ आ गई कार्बोकेटायन बन गया, चलो यहाँ तक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, इसी पे डिपेंड करेगा आगे क्या होने वाला है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टूडेंट्स। अब बताओ कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। एक्सपोजिंग मैंने ये लिखे, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, मैंने ये लिखा C3 CH2+ लिखा, फिर मैंने ये लिखा then I am writing तो ये कौन कौन से मैंने लिखे हैं बताओ, ये कौन सा है कार्बोकेटायन, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए। सर इसमें ग्रुप अलग हो गए ना सारों में। हाँ तो इनको क्या बोलते हैं, टेल मी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट यू कॉल देम स्टूडेंट्स। सर प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये वाला 3। इसको कहूँ तो ये 0 डिग्री है। चलो 0 डिग्री। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका कैसे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो आ गया ये। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटायन स्टूडेंट्स। सर इसमें स्टेबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा टर्शरी की होनी चाहिए। अच्छा अब इसका मुझे रीजन भी बता देना जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं तुम्हें, 1 मिनट मिलेगा। जो भी कुछ कह रही हो रीजन दे देना, whatever students you say you give me the reason, that's all, बस फिर तुम्हें नंबर मिल जाएगा उसका। Is there any difficulty? सर इसमें होगा सबसे ज्यादा टर्शरी का, फिर सेकेंडरी, हाँ फिर प्राइमरी, और फिर लास्ट में 0 डिग्री होगा। हाँ, रीजन भी बता दो कौन से बेसिस पे ये सारी बातें
on what is the reason for the, what is the cause of the stability of the carbocation students? सर टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में 1 और वो 0 डिग्री में इफेक्ट 1 का भी नाम नहीं है। बताओ, इफेक्ट का नाम तो बताओ। सर वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और कुछ? और सर इसमें एक वो भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, we will study both of them in this next coming lectures, चिंता मत करो, नोट कर लिया मैंने तुम्हारा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वी विल बी स्टडिंग इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस पे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर्स में, डोंट वरी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने दिखा दिया स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर हमने दिखाया है। अब एक चीज हमेशा याद रखो, इसका कंक्लूजन क्या निकला, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ये पॉइंट था नोट करने का स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। You see that is an important point in organic chemistry, that the more the charge on present on an atom, the less stable it is. अगर चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे स्टूडेंट्स, डीलोकलाइज कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या होगा, इट विल बिकम मोर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी। इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं? यस सर। अच्छा, समझ में आ गई स्टोरी, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ और भी दिखाया, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बताओ, कैन यू ड्रा द एलाइल एलाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है? एलाइल, कैन यू ड्रा एलाइल कार्बोकेटाइन स्टूडेंट? इट्स इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बोकेटाइन। जो भी चीजें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नीट में बहुत दिमाग लगेगा, समझ लेना। बताओ एलाइल कार्बोकेटाइन पता है कि नहीं पता, जल्दी बोला करो, टाइम तुम्हें 30 सेकंड मिल रहा है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइल, यस सर। एलाइल सुना था कि नहीं सुना था, क्या होता है बताओ जल्दी। यस सर। सिंगल और डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल है फिर डबल है, ये sp3 और sp2, sp3 sp2। सर पहले डबल होता है फिर सिंगल होता उससे है, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ डबल लगा दो इधर सिंगल लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मॉलिक्यूल को रोटेट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूं तो क्या बन गया फिर स्टूडेंट्स, H रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, CH2। CH2। तो ये एलाइल कार्बोकेटाइन बन गया, बोलो बना है कि नहीं बना? ये यस सर बन गया। डाउट? अच्छा ठीक है, देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बार बार मैं बताता हूँ, आई एम टेलिंग यू। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये शिफ्ट कर सकता है, पाई वाला, ये जब एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, बोलो यस और नो। तुम्हें मैंने बताया थे सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने, यस और नो? यस सर। नहीं बताया तो दोबारा बता दूंगा, ये सारी नहीं चीजें सर बताए थे इंपॉर्टेंट है। एक सिग्मा और एक पाई है, तो पाई वाला जाएगा, सिग्मा वाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा है, वाला रहेगा, वो तोड़ना पड़ेगा मुझे, तो ये चले जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, ये CH2, यहाँ पे डबल आ गया और यहाँ पे सिंगल आ गया, तो ये क्या बन गया, तो इसके दो स्ट्रक्चर बन गए, कितने बने, दो। अब देखो एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है स्टूडेंट्स, कैन यू मेक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, कैन यू मेक द बेंजाइलिक ग्रुप? 1 मिनट का वक्त मिलेगा, जल्दी करो। यस सर। बनाओ फिर फटाफट बनाओ, तू अपनी कॉपी पे। गॉट इट? यस सर। अच्छा, तो क्या किया तुमने कहा ये लो, कॉलीन में से बस एक हाइड्रोजन वाला हमें निकालना था, तो बेंजीन के ऊपर एक CH3 प्लस, CH2 प्लस। ठीक है। यस सर। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये प्लस इधर ही रहेगा या शिफ्ट हो सकता है? सर ये प्लस शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट हो सकता है, तो कैसे होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, अब क्या होगा, दिस इज माई H, दिस इज माई H स्टूडेंट, दिस इज दिस, तो यहाँ पे क्या चार्ज आया, प्लस। ये सही है गलत है, जल्दी बताओ। यस सर। कितने और बना सकते हो, हाउ मेनी मोर? सर ऐसे 1 2 3 सर, टोटल मिला के इसके अलावा 2 और बन सकता है। 2 और बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया वैसे तुम्हारे लिए। ओके। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या एलाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ, 30 सेकंड।
सर बेंजाइलिक सर बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, वाई? तुम कह रहे हो ये मोर स्टेबल है, तो रीजन भी तो दोगे मुझे। यस सर। फिर बताओ रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट स्टूडेंट्स? जल्दी सोच। Anyway, I will be discussing more about this in the coming lecture. आपको बात समझ में आनी शुरू हो गई है क्यों डिस्कस हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ पे 2 बने हैं। अब इसके बारे में डिस्कस बाद में करूंगा, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्वेश्चन इसने दे दिया, क्या दे दिया उसने पेपर में? ये दिया PH3C प्लस PH2CH प्लस and PH3C plus. बताओ stability order. You have to tell the stability order of carbocation, student. CH plus I will give you 1 minute time और for answering this PH3 question. C plus PH3C plus मैं बता pH क्या होता है? यस सर फिनाइल ग्रुप होता है। वो क्या होता है? C6H5 ऐसे? C6H5 यस चलो सर। ठीक है, फिर तुम्हें you have only 1 minute to answer the question. सर PH3 दो बार क्यों है? ये फर्स्ट और लास्ट 2 बार है, ये 3 बार है, ये 2 बार है। अच्छा ये वाला लास्ट वाला। अच्छा ये दोनों सेम हो गए हैं। यस सर। सेम हो गए हैं तो इसको फिर आप इसको काट देते हैं। चलो फिर आप इसको ऐसे कर लो, PHCH2 प्लस कर लो। चलो ठीक हो गया। PHCH2 प्लस ओके सर। तो इसमें से चलो PH3C प्लस PH2CH प्लस और ये होगा PHCH2 प्लस। यस सर हो गया। हाँ, व्हाट इज योर आंसर? सर इसमें से PH3C प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर PH2CH प्लस और फिर PH प्लस CH2 PHCH2 प्लस। ठीक है, that is the correct answer and we will be discussing more information about this in the coming lectures, as these are some of the important questions, students. So we are stopping at this stage. We will meet you in our next lecture with more general organic chemistry. Student, what is happening, how to understand the organic reactions, mechanisms of the reaction, and what type of questions are coming. Students, did you enjoy the session? Yes or no? यस सर। मजा आया करने में? यस सर। समझ में आया? यस सर। I thank you for your live interaction. You could answer large number of questions in an intelligent way. Only thing is, I mean, I will say that don't try to hurry up the answers. Take your time. Take your time, students. Okay, then bye bye. Thank you very much for giving good answers. We'll meet you in our next class. ओके थैंक यू सर। Okay, thank you. Good night. थैंक यू सर।